Hello dear students, welcome you all in our biology virtual class. Today I am going to start unit 5 chapter number 17, that is the breathing and exchange of gases under the human physiology. So before we going to start a new chapter, that is the breathing and exchange of gases, we have to learn about the human respiratory system. In class 10, in life process chapter, we already know something about the human respiration, human respiratory system. So in class 11, we have to know more detail about the breathing mechanism and the exchanges of gases in human body. So first of all, we have to discuss our human respiratory system. See, human respiratory system contain some basic part. First of all, the main part or the initial part is called the nostrils. Nostrils, which are responsible for the gas in or gas out from the human body. Okay. In human there is a two nostrils which are basically exchange the gases from atmosphere and human body. Just human body का nostril से वो गैस को, जैसे ऑक्सीजन इन केस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है. ठीक है. सो नॉस्ट्रिल बेसिकली प्ले द फंक्शन ऑफ टेकिंग और टेक आउट ऑफ गैसेस. ओके. सो फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स द एयर पास थ्रू द नासोफेरिंग्स. नॉस्ट्रिल के बाद वो एयर कहाँ पे जाता है? नासोफेरिंग्स. इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर पाइप. ये कॉमन पैसेज है जो कि ना फूड और एयर पाइप का. ठीक है. हम लोगों को पता है कि हम लोगों का बक्कल कैविटी से एक पाइप जो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के लिए, इंजेक्शन ऑफ फूड, और एक होता है एयर पाइप जो कि ना एयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर पाइप एंड इट ओपन्स इनटू अ स्मॉल बॉक्स कॉल्ड द लैरिंग्स. लैरिंग्स जिसका और एक नाम होता है साउंड बॉक्स. साउंड बॉक्स. ठीक है. तो ये फूड और एयर पाइप कहाँ पे मिक्स होता है? लैरिंग्स बोल के एक पर्टिकुलर वॉइस बॉक्स में आके वो मिक्स होता है जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है. फिर नासोफेरिंग से वो एयर फर्दर कहाँ पे पास होता है? ट्राकिया में पास होता है. ट्राकिया आर द हॉलो पाइप which is basically surrounded by a C-shaped cartilaginous, C-shaped English alphabet C-shaped cartilaginous structure जो cartilaginous ring से बना होता है. अगर हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे ड्रॉ को तो देखो ये हो गया एक ट्रैकिया. ठीक है. अब ये ट्रैकिया में ऐसा बहुत सारा रिंग रहता है. ठीक है. दिस रिंग are help or to prevent the collapsing of trachea during the passes of air. ठीक है. तो ये ट्रैकिया जो होता है नासोफेरिंग से स्टार्ट होता है, एक वाइड हॉलो पाइप जिसमें सी से बहुत रिंग होता है. ये जो दिख रहा है ना, दिस आर द रिंग मेड अप बाय कार्टिलेज. ओके. सो नेक्स्ट ट्रैकिया फर्दर कुछ डिस्टेंस जाने के बाद इट्स डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकी. तो ये कुछ देर जाने के बाद ऐसे डिवाइड हो जाता है. ठीक है. जहां से स्टार्ट होता है बेसिकली लंग्स. सो दिस टू पार्ट, दिस वन एंड दिस वन, इज कॉल्ड द ब्रोंकी. सो ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू टू hollow pipe which is called the bronchi, and bronchi within the lungs, ये होता है lungs. ठीक है. within the lungs
it again subdivided, and it again branches, ऐसे सबडिवाइड हो जाता है. ठीक है. These sub branches are called the bronchioles. These sub branches are called the bronchioles. ठीक है. So bronchi, which are number 2 in number, are further subdivided or sub branches in lungs, which form special structure, narrow pipe like structure, which is called the bronchiole. ठीक है. Now the end of each bronchiole, there is a round sac like structures are there. This sac like structure are called the alveoli. This sac like structure is called the alveoli. That alveoli basically responsible for the final exchange of gases. So alveoli play important role for the exchange of gases, means it take the carbon dioxide from the deoxygenated blood and it give the oxygen to the oxygenated blood for the human respiration. So bronchi are subdivided into bronchioles, and the tip of each bronchioles is a solen structure. It's a sac-like structure which is called the alveoli, which are responsible for the gaseous exchange with blood. Okay. Now the fact is that हम लोग का लंग्स के अंदर जितना एल्वियोलाई होता है, सब एल्वियोलाई को अगर हम लोग काट के फ्लैट करेंगे, फ्लैट करके रखेंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, तो वो एक टेनिस कोर्ट की जैसा जगह लेता है. ठीक है. अगर ईच एंड इंडिविजुअल alveoli, if we cut and placed in flat structure, then it will same as in like a tennis court. टेनिस कोर्ट के जैसा इतना स्पेशियस जगह ले लेता है. ठीक है. नेक्स्ट ब्रोंकी के बाद आता है लंग्स. सो लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स. ओके. सो लंग्स के अंदर क्या क्या होता है? लंग्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ब्रोंकी, ओके, नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली एल्वियोलाई. सो ये जो लंग्स होता है, लंग्स जनरली कंपोज्ड ऑफ bronchi, bronchioles and alveoli. Okay. Generally there is a pair of lungs present in our body, left and right. Okay. Now the left lungs are generally smaller than the right one. Why? Because due to the presence of heart in our left side, the size of left lungs are always smaller than the right one. Now the lungs composed of two layer, दो लेयर से ये बनता है, जिस लेयर का नाम होता है प्ल्यूरा. अगर ये लंग्स है तो लंग्स का ऐसा एक दो लेयर होता है, दो लेयर से ये बनता है. ये लेयर का नाम होता है प्ल्यूरा. ठीक है. प्ल्यूरा. नाउ विद इन द प्ल्यूरा देयर इज ए फ्लूइड. इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड. ये फ्लूइड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड. ठीक है. ये प्लूरल फ्लूइड का काम होता है फ्रिक्शन फ्री करना. ठीक है. ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उस फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये प्लूरल फ्लूइड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. सो दिस इज आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ वी हैव टू लर्न द डिफरेंट जोन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या मेन दो इंपॉर्टेंट जोन्स होता है. एक होता है कॉन्डक्टिंग पार्ट, जो कि ना गैस को कॉन्डक्ट करके लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और एक होता है एक्सचेंज पार्ट, जो कि ना गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है.
So conducting part generally consists of from nostril to terminal bronchioles. So nostril से लेकर terminal bronchioles तक जो पार्ट है वो क्या है, conducting part. मतलब ये क्या करता है, सिंपली ट्रेवल में हेल्प करता है. जो गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस को जब हम लोग ब्रीथ इन करता है तब वो गैसेस और एयर नॉस्ट्रिल से होके फाइनली एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रोंकियोल्स तक जो पैसेज है उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट. एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सचेंज पार्ट. एक्सचेंज पार्ट मतलब होता है जहां पे वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में एंटर करता है. वो पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज पार्ट. एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है जनरली, एक्सचेंज पार्ट में जनरली होता है एल्वियोलाई जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. एंड कैपिलरीज एंड अदर duct systems are also helping in the exchange part during our respiratory system. So these are the two main zones of respiratory system. Now there are some common steps of pulmonary respiration. Pulmonary respiration का कुछ common steps होता है जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं थोड़ा इमेजिन करो. जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो एयर नॉस्ट्रिल से होके कहाँ कहाँ जाता है वो थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं. ठीक है, सो रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज नोन एज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन. जब लंग्स से कोई रेस्पिरेशन हो रहा है कोई भी एनिमल के अंदर तब उस रेस्पिरेशन का नाम हो जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. सो पल्मोनरी रेस्पिरेशन का जो स्टेप्स होता है, फर्स्ट क्या होता है देखो, ब्रीदिंग ऑफ लंग्स दैट इंक्लूड्स द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. सो ब्रीदिंग जब कर रहे हैं हम लोग, ब्रीदिंग मतलब होता है आइदर गैस को इनटेक करना या बाहर छोड़ना. सो इट इंक्लूड्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ये होने के बाद फिर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना. वो जो एयर था वो एयर ऑलरेडी लंग्स में आ गया. अब लंग्स में आने के बाद क्या होगा, वो गैस को एक्सचेंज होना पड़ेगा. एक्सचेंज होने के लिए क्या चाहिए, एल्वियोलाई. सो एल्वियोलर मेम्ब्रेन टेक द नेक्स्ट रोल फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन बिटवीन ब्लड एंड लंग. ठीक है, सो एक बार अगर गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, ब्लड के साथ अगर ऑक्सीजन मिक्स हो गया, देन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड. अब ब्लड क्या करेगा, वो गैसेस को, फॉर एग्जांपल क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, सो ऑक्सीजन को ब्लड अभी कैरी करके लेके जाएगा. कहाँ लेके जाएगा, लेके जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू. टिश्यू लेवल में वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता होता है जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है. और से वो रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करेगा. ब्रेक डाउन करने के बाद ही ना हम लोग को एनर्जी मिलेगा. सो वो ब्लड क्या करता है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल तक लेके जाता है ताकि ईच एंड इंडिविजुअल सेल में वो ऑक्सीजन पहुंच जाए. ठीक है, सो फाइनली जब टिश्यू या सेल में ऑक्सीजन पहुंच गया उसके बाद क्या होगा, फाइनल स्टेप दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यू सेल्स और ऑक्सीडेशन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच एंड इंडिविजुअल सेल टेक द ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. एट द सेम टाइम इट विल प्रोड्यूस और इट विल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड which again mix with the blood. The name of the blood is called the deoxygenated blood which come back to the lungs again. So ये process जो ये steps है ये continuous manner में चलता रहता है. Okay, so these are the common steps of pulmonary respiration. Now हम लोग को देखना पड़ेगा कि what are the mechanism of breathing. ये mechanism क्या होता है breathing के लिए. जैसे हम लोग को पता है ब्रीदिंग मतलब होता है एक इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन ऑफ गैसेस और एक्सपिरेशन ऑफ गैसेस. सो द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स बाय प्रेशर ग्रेडियंट इन बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ब्रीदिंग मैकेनिज्म. सो ब्रीदिंग मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि जब ब्रीदिंग हो रहा है ना, बेसिकली इट फॉलो द सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म. सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म में क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से सब्सटेंस लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आता है जब तक बोथ आर मेक इक्विलिब्रियम. सो ड्यू टू द occurrence of pressure gradient of atmosphere and the body level, the gases move in or move out, and this mechanism
is followed by inspiration of air and expiration of air. Now we have to see the how inspiration take place in human body. कैसे inspiration होता है? So देखो, it occurs when the intrapulmonary pressure is lesser than the atmospheric pressure. मतलब क्या है, अगर कोई भी गैस को, ऑक्सीजन गैस को बॉडी के अंदर आना है तभी तो इंस्पिरेशन होगा. सो इंस्पिरेशन के लिए क्या होना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होना पड़ेगा एज कंपेयर टू द पल्मोनरी प्रेशर. बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में होगा तो इजिली ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगा. ठीक है. सो इंस्पिरेशन मीन्स इट ऑकर्स व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पे हम लोग मेनली ऑक्सीजन गैस का रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं. जो प्रेशर की बात हम लोग कर रहे हैं, जो ग्रेडियंट प्रेशर की बात हम लोग कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. सो इंस्पिरेशन में टाइम में क्या होता है, देखो एक फ्लो चार्ट हमने इधर ड्रॉ किया है. फ्लो चार्ट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो लंग्स के बाहर में जो इंटरकोस्टल मसल होता है वो ब्रीथ इन के टाइम में, ब्रीथ इन मतलब इंस्पिरेशन, ब्रीथ इन के टाइम में क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाता है तब लंग्स के बाहर में जो रिब्स होता है वो रिब्स मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता है. एट द सेम टाइम जो डायफ्रागम है, डायफ्रागम बिकम फ्लैटेंड. जब डायफ्रागम फ्लैटेंड हो जाता है, सो इंटरकोस्टल मसल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इट लीड्स टू द रिब्स मूवमेंट थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन as well as diaphragm become flattened, which gives result to the increasement of thoracic cavity. So हम लोगों का बॉडी के अंदर दो कैविटी होता है, एक होता है thoracic cavity और एक होता है abdominal cavity. अब ये thoracic cavity और abdominal cavity के बीच में होता है ये diaphragm. So ये diaphragm जब फ्लैट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली thoracic cavity जो होता है वो बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. तो उसका जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली एयर रसेस इनटू लंग्स. सो एयर क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर आ जाएगा. सो इंस्पिरेशन के टाइम में क्या हो गया, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट व्हिच लीड्स द रिब मूव अपवर्ड, डायफ्रागम बिकम फ्लैटेंड. फाइनली इट लीड्स टू द इंक्रीजमेंट ऑफ थोरैसिक कैविटी व्हिच लीड्स एयर रसेस इनटू लंग्स. ये होता है इंस्पिरेशन के टाइम में. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्सपिरेशन के टाइम में क्या होता है. एक्सपिरेशन के टाइम में एग्जैक्ट ऑपोजिट टू द इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन में जो हुआ था ऑपोजिट होगा. तो एक्सपिरेशन में क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर होता है वो ऑब्वियसली हाई होना पड़ेगा एट कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. तो जनरली क्या होता है एक्सपिरेशन में, क्या होता है एक्सपिरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रेस्पेक्ट में. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो ग्रेडियंट प्रेशर होता है बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर. सो कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स टू मूव आउट फ्रॉम द बॉडी. तो वो प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है देखो, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाता है. इंस्पिरेशन में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे रिलैक्स हो गया. रिलैक्स हो जाने की वजह से जो रिब्स था उसका डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ और साथ साथ में डायफ्रागम भी जो था वो श्रिंक हो गया. तो डायफ्रागम जब श्रिंक हो जाएगा ऑब्वियसली जो थोरैसिक कैविटी था वो कैविटी का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा. तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा सो एयर रसेस फ्रॉम लंग्स. सो एयर जो था लंग्स के अंदर वो लंग्स से निकल जाएगा, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में. सो ये होता है एक्सपिरेशन. सो दीज आर द टू मेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन बींग्स कितना होता है. नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन बींग्स जनरली 12 to 16 पर मिनट. हम लोग हर मिनट में 12 से लेकर 16 टाइम तक हम लोग ब्रीदिंग कर सकते हैं. एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इज कॉल्ड द स्पाइरोमीटर. द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द ब्रीदिंग रेट इज कॉल्ड द स्पाइरोमीटर. ओके, ये तो हो गया ब्रीदिंग मैकेनिज्म. अभी हम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इससे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आता है. ठीक है. तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम लोग डिस्कस करने के लिए जाएगा. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर फर्स्ट वन इज द टाइडल वॉल्यूम. व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम इन शॉर्ट फॉर्म टीवी. सो द वॉल्यूम ऑफ एयर inspired
और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल एफर्टलेस ब्रीदिंग। नॉर्मल एफर्टलेस ब्रीदिंग के टाइम में हम लोग जितना गैस अंदर लेता है या बाहर छोड़ता है उससे हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम होता है अप्रॉक्स 500 ml। So this is called the tidal volume. Next is the inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume मतलब क्या होता है? The extra volume of air that can be inspired beyond the normal tidal volume. मतलब हम लोग जितना टाइडल वॉल्यूम के दौरान जितना एफर्ट लेस करके नॉर्मली जितना हम लोग एयर ले रहा था उससे काफी एक्स्ट्रा अमाउंट में भी हम लोग एयर को इनटेक कर सकते हैं फोर्सफुली। सो अगर हम लोग फोर्सफुली जितना अमाउंट ऑफ एयर को इनटेक कर सकते हैं वो वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका अमाउंट होता है अप्रॉक्स 2500 to 300 ml। ठीक है, इतना होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IRV। ठीक है, ये खुद से कोशिश करके देखना। हम लोग जनरली नॉर्मल जो एफर्टलेस ब्रीदिंग नॉर्मल टाइम में लेता है, और अगर हम लोग कोशिश करेंगे जोर से सांस लेने के लिए, जब जोर से सांस ले रहा है उसी टाइम में जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब हम लोग अगर फोर्सफुली जितना एयर को बॉडी से निकाल सकते हैं। सो द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथेड आउट बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज कॉल्ड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, जिसका अमाउंट होता है 1000 to 1100 ml। ठीक है, और लास्ट में होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम में क्या होता है, देखो हम लोग जितना भी चाहे कोशिश कर ले पूरा एयर को हम लोग लंग्स से नहीं निकाल पाएंगे। थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ लंग्स में थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ गैसेस रह ही जाता है, जो रह जाता है उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। मतलब हम लोग फोर्सफुली जितना हो सकते हैं हम लोग एयर को बाहर निकाल दिया, निकालने के बाद भी लंग्स में थोड़ा बहुत एयर बच जाता है, उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या है, देखो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड द RV या रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट होता है 1100 to 1200 ml। मतलब 1100 से लेकर 1200 ml तक एयर हमेशा हम लोगों का लंग्स में रहता है। ठीक है, सो दीज आर द मेन 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। नाउ वी हैव टू नो द पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है अभी हम लोगों को जानना पड़ेगा। सो पल्मोनरी कैपेसिटी के अंदर क्या होता है, when 2 or more respiratory volume are combined। ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटी में क्या हो रहा है, जो हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्कस किया था, ऐसा 2 या 3 मोर देन 1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को एक साथ मिला के हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो पल्मोनरी कैपेसिटी के अंदर फर्स्ट जो आता है वो होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या IC। सो IC बेसिकली क्या है, TV प्लस IRV। ये चीज को इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, तब जाके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इजिली याद हो जाएगा। So the total volume of air a person can inspire after normal expiration is called the IC. It includes TV plus IRV. ठीक है, next one is the expiratory capacity. Expiratory capacity में क्या हो रहा है, a total volume of air person can expire after normal inspiration. Normal inspiration is called the expiratory capacity, that is includes the tidal volume plus expiratory reserve volume TV plus ERV, जिसका वैल्यू होता है कितना 1500 से लेकर 200 ml तक। ठीक है, थर्ड वन होता है वाइटल कैपेसिटी। थर्ड वन होता है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। सो ये देखो क्या है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। सो द मैक्सिमम वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम तक वो ब्रीद इन कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लिया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद फिर से जब वो ब्रीद इन कर रहा है तब कितना अमाउंट ऑफ एयर को
वो अंदर ले सकता है। वो क्या होगा? इट इंक्लूड्स टीवी प्लस आईआरवी, ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ये होता है टोटल वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि इतना अमाउंट ऑफ एयर हम लोगों को चाहिए ही चाहिए फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन। सो वाइटल कैपेसिटी रेंज होता है 4000 टू 4500 ml तक, ये होता है वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी में क्या हो जाएगा? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है? ईआरवी प्लस आरवी, ठीक है। हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में पढ़ा था ना, ईआरवी मतलब होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आरवी मतलब होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों को एक करके होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एफआरसी। So the volume of air that will remain inside the lungs after normal expiration, it includes ERV plus RV. इसका अमाउंट कितना होता है? 3500 ml approx. And the final one is the total lung capacity. So lungs का total capacity कितना है? So lungs का total capacity निकालना है तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में जो चार हम लोग पढ़ा था, चारों का सम ऑफ होगा total lung capacity. Means it includes TV tidal volume, IRV inspiratory reserve volume, ERV expiratory reserve volume and the residual volume. ये चारों को ऐड करने के बाद जितना वॉल्यूम होता है उतना वॉल्यूम होता है टोटल लंग कैपेसिटी। इट अप्रॉक्स 5500 से 600 ml तक होता है, ठीक है। सो ये है कुछ बेसिक डेफिनेशन, इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत होता है। सो ये टोटल 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और ये 5 पल्मोनरी कैपेसिटी को हम लोग को पढ़ना है, मतलब टोटल 9। अगर हम लोग अच्छे से रेस्पिरेटरी के वॉल्यूम को पढ़ लेगा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मतलब ये 4 1 2 3 एंड 4, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को अगर हम लोग चारों को अच्छे से पढ़ लेगा तब जाके हम लोग को पल्मोनरी कैपेसिटी को पढ़ने के लिए इतना दिक्कत या इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है उसका ही एडिशन से बनता है एक पल्मोनरी कैपेसिटी, चाहे वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो, चाहे वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। सो ये डेफिनेशन तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और नहीं तो और एक 3 मार्क का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, जो हमने इधर फ्लो चार्ट से ड्रॉ किया है। सो ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर रहे हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन में बहुत आता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।